ناظرین، حاضر ہے خبرناک کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں ڈمی میوزیم سے آئے بلاول بھٹو زرداری۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ کس نام سے پکاروں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عائشہ عائشہ عائشہ۔ کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا؟ کاف کینچی تے فوارا۔ دیکھو انہاں دا تعارف کرا رہے ہو جنہاں دی وجہ نال اج ایتھے بیٹھے نے، انہاں دا بھی کرو۔ بالکل، اور بلاول کے ساتھ تشریف فرما ہے اسپیچ رائٹر اور جیالے۔ بڑی Welcome, مہربانی، sir۔ بڑی مہربانی۔ لیکن آنٹی، آپ کے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام ساری قوم کو دینا چاہتا ہوں۔ دیجیے۔ ایکسکیوز می کیمرہ مین، زوم ان۔ پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو ہو رہی ہے۔ اچھا، تمام مخبر حضرات سے میری التماس ہے کہ وہ آگے آئیں، اور یہ مخبر حضرات ہی تھے جنہوں نے بی بی اور بابا کو ضلع وطنی میں سپورٹ کیا۔ سر یہ مخبر نہیں ہے، مخیر حضرات، مخیر۔ سر مخیر حضرات ہے۔ او کہو سمجھا کے لیا کر، میری اکھ کٹنی اچھل چچے کری جاندے۔ جی جی، تمام مقید حضرات آگے آئے۔ مقید حضرات، اگر آج نہیں آئے تو کب آؤ گے؟ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اب ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا۔ تمام مجرم راز ہمارے ساتھ ہیں۔ مجرم راز؟ سر مجرم نہیں، محرم محرم۔ محرم محرم کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ بہت اچھے، اچھا گایا چاچو، پلگ پانے۔ پتر ٹکے میری گل سن، بیٹھے اونٹر کا منہ ہے تیرا۔ دیکھو میری گل سنو، یہ ساری تقریراں کر رہے ہیں بھٹو صاحب دی کاپی۔ جی بالکل۔ بھٹو صاحب دیاں تقریراں دے وچ کروڑاں دا مذبح ہونا ہے۔ واہ۔ اسی گئے ہیں، سانو جگہ ہی نہیں لبھی، الگ دیوانے بھٹو دے جیالے پیچھے مینوں جگہ لبھی ہے، بھٹو صاحب دی نظر پئی ہے۔ انہوں نے کہا بشیر تو اگے آ جا۔ پھر آپ آگے گئے؟ ہاں جی گیا، بھٹو صاحب نے کولوں ویکھ کے کیا توں اور پیچھے چل۔ بہت اچھے بیٹے، بھٹو صاحب دے نال محبت ہے، اینے غریب دی جُتی نو ٹانکے نہیں لگنے جنہیں میرے سر چ لگے نے۔ اچھا۔ مارشاءاللہ ویکھیاں نے۔ ہاں جی، زیادہ اور دے وچ۔ اب وہ کسی غریب کے پتے میں آئی ہوئی پتھری، میری بات کو ہو جانے دیں۔ میں نے کیمرہ مین، میں کہ اتنا پیسہ ہی اپنا کیمرہ لہدا ہی لے لو۔ کی پہ کر دیو بلاول صاحب، تسی چیئرمین ہو لیکن اسی تانوں من گئے ہاں، تسی بڑے بڑے لیڈر بنو گے لیکن اجے نہیں۔ اور میرا یہ پیغام ہے کہ دنیا بھر کے محبت کشو ایک ہو جاؤ۔ محبت کشو؟ نہیں وہ محبت کش نہیں، محنت کش سر، محنت۔ تو ٹھیک کر کے رومن میں لکھو نا۔ تو کرو کیوں نہیں صحیح لے کے لیا ترکی دیا دمبیا؟ وہ صحیح لکھے ہے، انہوں نے اردو آندی نہیں کی۔ وہ بلاول بھٹو صاحب ہر زبان، پشتو، بلوچی، پنجابی، سندھی، ہر زبان بھٹو صاحب نانے تے جاؤ، کی کر دے ہو؟ اٹھو، میری دنیا کے ادیبوں کو جگا دو۔ سر ادیبوں نہیں، غریبوں کو جگا دو۔ یار ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادیبا نے کہڑا کام تے جانا، غریبوں کو جگاؤ، کام پہ جائیں۔ بہت اچھے، جنہوں نے ہون ہی نقطیاں دا نہیں پتا، کل نو تے سانو نقطے لا دین گے۔ بس وہ کری کری نکتا چینی نہ کرو۔ بہت اچھے چاچا جی، تہاڈا بھی بڑا دار چینی ورگا منہ ہے۔ جا دمبے نال سیلفی کھچ کے انہوں وڈا بھرا کہہ نالے۔ دیکھو بھٹو صاحب نے غریباں نال محبت کی ہے، انہوں نے مزدور نو بھی جفی پائے، بھاویں مٹی دا بھریا ہے، انہوں نے کدی اپنے کپڑے دا خیال نہیں کیتا۔ اسٹوڈنٹ کارڈ کنے بنایا؟ بھٹو صاحب نے۔ راشن کارڈ کنے بنایا؟ بھٹو صاحب نے۔ شناختی کارڈ کنے بنایا؟ بھٹو صاحب نے۔ پاسپورٹ کنے دیتا ہے غریباں نو؟ بھٹو صاحب نے۔ پاسپورٹ نہ ہوندا کون باہر جاندا؟ جڑیاں نیشنلٹیاں مل رہی نے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 4 آنے فیس ہوندی سی، 4 آنے سکول دی۔ اچھا۔ چوانی دے کے ماسٹر نے بھاویں 1.5 گھنٹہ گفتگو کر لو۔ 25 پیسے، پنجابی میں اسے پولی بھی کہندے سن۔ پولی تیلی پولی، اسی تے موری والا پیسہ بھی پتر خرچے۔ تیلی یعنی کہ 50 پیسے۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں تعلیم اور صحت پر بجٹ کا متدبے حصہ خرچ کیا گیا۔ واہ۔ جی جی، مبشر حسن فائنانس منسٹر تھے اور بڑا ریڈیکل سٹیپ تھا ان کا یہ،
और तारीख में मौजूद है ये बातें। जुमे की छुट्टी किने कराई सी? किन्ने? भुट्टो साहब ने। वाह। हालांकि जुमे में मेरी डबल दिहाड़ी होती सी। नईम साहब को हिसाब कराओ, भुट्टो साहब वाल मेरा 2.5-3 लाख निकल आना। मेरे अजीज हमवतनों, खतों में होने वाली तब्दीलियां सिर्फ हम ही समझ सर खतों नहीं, खित्तों में। ओके, खेतों में होने वाली तब्दीलियां सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। क्या खेतना च वाकई बहुत तब्दीली हो गई, हुण लोग घरों ही नहीं निकलते। आशा जी माशाल्लाह तुसी टीचर हो जी। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाओ। मैं तो अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। इन्हों की दरअसल पार्टी भी कमजोर है ते उर्दू भी कमजोर है। और तुसी मनो ना मनो, नाल बैठा चाचा भी कमजोर जे। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟੀ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। फरहाद की कोई लय नहीं है, आज कौन है? नालाए पाबंदिए में नहीं है। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ओके, इट्स डन। ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੇ। ਇਹ यूएन जे करारदार पा के आज छुट्टी सी। ओ जियाला साहब, जो भुट्टो साहब ने फाड़े थे वो करारदाद नहीं थी, वो उनके नोट्स थे जो सलामती काउंसिल के इजलास के दौरान उन्होंने फाड़े थे। लेकिन आशा ही दलेरी ते है ना, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਕਾਪੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰੀ, 1800 ਦਾ ਪੱਖਾ ਸਾੜਤਾ ਹੀ। 400 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अरे वहाँ पे 500 दो तो कापी 400 की मिलती है। बकवास करते हो। उस दौर में मेरा ख्याल है 4 आने की एक कॉपी मिलती थी मैथमेटिक्स की। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। लेकिन आयशा, जी। वो कॉपियां तो बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जो मुनाफकत और जाहरदारी का लिबादा इस सोसाइटी को पहनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो क्लशन कॉफ और हेरोइन और नसिया मनसिया कर दिया पाकिस्तानी मुआशरा, जो एक बेहतरीन मुआशरा था। प्रोफेसर साहब, किराए की जंगें, मौशी बहरान, फंडामेंटलिज्म, फनेटिसिज्म, क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और सितम जरीफी ये देखें कि ये सब कुछ इस्लामाइजेशन के नाम पर हुआ। बेशक वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, वाह। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬੈਂਕ, जी वाह। बिल्कुल ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ। बिल्कुल ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। सही। अगर देखो- सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठा हो जाते, ਹੋ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। बिल्कुल। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ मस्जिद से ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। जी जी, जैसा वो चाहते थे, अगर सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाते तो मिडिल ईस्ट में जो आज हो रहा है वो ना हो रहा होता। ਤੇ ਭੱਟੋ ਵਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ मस्जिद से ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਭ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ। अच्छा, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨੇ। अच्छा। ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ मस्जिद इसलिए नाम पे है। आप लोगों ने अगर आज डिस्कशन नाना पर करनी थी जी। तो मुझे क्यों बुलाया? आप लोग एक काम करें, सारे जाएं और जाके नाना के पास करके आ जाएं इंटरव्यू। जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तेरे नाने की तो कोई बात है भी नहीं, तेरी नानी की बात है। अलबत्ता ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। अरे ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਖਲੋਤੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਤੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਧਮਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਧਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, वैसे मुसलमान मुल्कों को तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर ही लिया था। जी बिल्कुल। और शायद इसी जुर्म में उन्हें सजाए मौत दी गई। ਹਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। अच्छा। ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਲਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो जो हर एक से जवाब मांगते रहते हैं, जॉर्जी जॉर्जी जॉर्जी। गालिबन आप नसीम हसन शाह साहब की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जाहिर है नसीम हसन शाह की बात कर रहा है और मुराद अली शाह की बात कर रहा है। वैसे आयशा, दुनिया के कई ज्यूरिस्प्रूडेंस के माहिरीन ने जी। इस पे किताबें लिखी हैं और ये साबित किया गया है कि ये बहरहाल एक जानिबदार अमल था। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਣ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ। नेशनलाइजेशन की तरफ गालिबन इशारा है। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਏ, ਆਏ ਹਾਏ। ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੋ ਖਿਦਮਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਜਾ। और जनाब ਤੁਹਾਡੇ नाने ने तो ऐसे ऐसे काम किए ने कि ओ हो। नहीं, मेरा नाना तो नहीं, आपकी नानी ने भी आ चुकी हुई थी। याला साहब आप माजी लद गया है, आप माजी की बातें कर रहे हैं। ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਲੱਦ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਆਈ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨ? ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਕਿस्तान नहीं बन सकते। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ हुकूमत ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। जियाला साहब सिंध में वो बादशाह हैं। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚਿੜੀਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? अच्छा जी, यहाँ मांग पत्ता बंद करवाए, को काम की बात होनी चाहिए। जी जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। मुराद अली शाह साहब भाग दौड़ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जौहरी तब्दीली नहीं ला सके वो। 1 माह तो उन्हें आए हुए हुआ है टोटल। अच्छा जी। इतने से टाइम में तो नई नवेली दुल्हन को सीढ़ियां भी नहीं दिखाई देती जहां से तिलक के वो अपनी झूठी जिदें मनवा सके। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਈ ਏ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਏ। बाबा तेरा सुच किथे, मैं बाहर जाके बंद कर रहा हूँ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੜੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੂਚੇ। वो तो मेन स्विच है ना। बिलावल, कराची में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, उनसे आपकी सेहत पे कोई असर पड़ा है? कराची में कौन सी तब्दीलियां आई हैं? हमने क्या समुंदर पुटवा के तारिक रोड पे शिफ्ट कर दिया है? क्या MQM ने लाइसेंस असला वापस कर दिया है? कौन सी तब्दीली? प्रूव करें। आपके पास किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं, और ऊपर से मेरी सेहत पे आपने कौन सा फर्क पड़ा हुआ देखा है? और मैं आज भी इतना फिट हूँ जी। कि रजाइयों वाली पेटी बगैर सांस लिए तीसरे फ्लोर पर यूं पहुंचा सकता। अगर इसे खाली हुए थे। अगर खाली पेटी का जिक्र क्यों कर रहा बे? तूने बीच में अपने घुंघरू रखने हैं। और तू तो चुप करो, जंगाल वाले लगड़ बगड़। फजूल बात करता है, चिकड़दा माइकल जैक्सन ना होए। बिलावल, MQM के फैसले अब कराची से होने लगे हैं, आप भी दुबई छोड़कर कराची आ जाए। स्टोन एज में रहने वाली खातून, एक चीज होती है जिसे कहते हैं टेलीफोन। जी। अब वो इजाद हो गई है, और इसके लिए कोई आपको बड़ी जगह की जरूरत नहीं। फोन तो इंसान वॉशरूम में बैठ के भी सुन लेता है, Really? मंजी थले वड़ के भी सुन लेता है। बहुत सी जगह है फोन सुनने के लिए। अब ये जो अल्ताफ अंकल बाहर से फोन करते हैं, जी। मेरी बात सुनो। बिलावल, हाँ। अपनी आवाज में बात करें। बाजूद अपनी आंखें तो कम करें, आप क्या बन गए? बेचारे फोन के डेले बाहर आ जाते हैं। तो ये फोन पर इंस्ट्रक्शंस का काम तो बंद नहीं होना, इसलिए ये अपनी 1.5 इंच की सहाफत अपने पास रखो। तो मकसद मेरा कहने का ये था ये क्या कि किया ये सिर्फ आपने? बातें क्या किया है मैंने पल में तोला, पल में माशा, समझ ही नहीं आई आपकी। मकसद कहने का ये है कि ये सिर्फ बातें हैं अच्छा जी। कि कराची से होगा, जो होना है बाहर से होगा। ਤੁਸੀਂ अच्छा। ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ कि होर तरह बोले। मैं कहा सिलेंसर की खराबी होगी, पता नहीं। बिलावल, कराची का कचरा ना उठाया जा सका, कोई मलाल है आपको? देखिए, कचरा मिल के दरिया बनता है। कचरा खुराक है किसकी? कुकड़ों की। कचरा एंटरटेनमेंट है किसकी? बिल्लियों की। वाह वाह। कचरे के बगैर तो आप भी टके की नहीं है। एक्सक्यूज मी? आपके घर वाले अगर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो सफाई बेस पे। कचरा अलामत है किसकी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। कैसे? लोग खाते पीते होंगे तो कचरा भी फेंकेंगे। आपने देखा है कभी सोमालिया में कचरे की शिकायत आई हो? नहीं। इथियोपिया में आई हो? नहीं। अफगानिस्तान में आई हो? नहीं। बाबा जी, आप कचरे पे कुछ नहीं कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, कचरा कराची वाला वाह। लोगों ने ऐसा डाला, कचरा उठा ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, बिल्कुल आपने अपनी नानी की तरह की है। आशा जी वैसे पंजाब वाले चंगे जे, अच्छा। कचरा इकट्ठा करके चिट्टे कपड़े च पैक कर देंगे।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਚਰੇ ਔਰ ਖਚਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਚਰੇ ਔਰ ਖੱਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਚਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਚਰੇ वाले शॉप पर ही दे दो। अच्छा बिलावल, अपने वजन का तो कुछ ख्याल करें, बड़े फरवा होते जा रहे हैं आप। मेरे वजन, आपने क्या मुझसे कैट वॉक करवानी है? क्या मतलब? आपको क्या टेंशन क्या है मेरे वजन? भाई आप यंग हैं, हैंडसम हैं, आपको दुबला पतला होना चाहिए। मेरे वेट के पीछे पड़ी हो, अपने आप को देखो, फूल फूल के गोभी का फूल बन गई हो। और मैं चेयरमैन हूँ पार्टी का। जी। मैंने सियासत करनी है या दबंग 3 करनी है? नहीं, आपने दबंग होके सियासत करनी है। अगर तुसी पार्टी की खातर भज नस करो तो स्मार्ट भी हो जाओगे, सीटां भी मिलनगियां, वोट भी मिलनगे। बिलावल, बाज हल्के ये समझते हैं कि मुक्तदर कुव्वतें 2018 का इलेक्शन आपको जितवाने के लिए मेहरबान हो रही हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत, कभी मुक्तदर कुव्वतों, कभी अपने घर को देखते हैं। कभी कराची का कचरा और कभी थर को देखते। तो पंजाब वाल क्यों नहीं देख रहे? पंजाब आपकी नानो देख रही है ना। बिलावल, आपने कंटेनर पॉलिटिक्स को धक्का लगाया, खुद पतली गली से निकल गए और खान साहब को अकेला छोड़ दिया। आप फफे कुटनियों की तरह बीच में तीलियां लगाने की कोशिश ना करें। अच्छा इमरान मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा जी। उनकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है। बेशक। जो कोई भी उनके साथ चंद कदम चला है वो अगो खबेत हो गया। आप तो सही उठाए। यहाँ के लोग तो 2 गाम चल के छोड़ देते हैं। बस कर दो मेहंदी हसन की नाला पौनी। कुर्बानियां देनियां, साडी पार्टी ना मुहब्बत दी इंतहा है। जी, आशा जी, वाह। जी। मैं वड्डी ते सूट नहीं सवाया, अच्छा बैनर बनवाए ने पीपी दे, अच्छा, तो वही बांध के फिरेंगे फिर। स्टिकर भी आप लाया है, आपे ही झंडे बनाने सा। वाकई कोई बड़ा। पार्टी नहीं सी पैसे देंदी। ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ 3 ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਸਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕੋ ਟਾਟ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਲਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਵੇਖ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। किथे तुसी बैठे हो? हालांकि दुबई सर- बह के सियासत नहीं होनी है। पंजाब में हमारी पार्टी का सफाया नहीं हो सकता। हाँ जी। जिंदा है नानी, इसकी जिंदा है। अगर तुसी लाफ्टर ले आना, सीटा भी लवो। नाज़रीन, हमें नहीं है एक डेट, हमारे साथ ही रहिएगा। के साथ हफ्ता शब 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। खबर का कोई मौसम, कोई वक्त नहीं होता। सुबह की हर ब्रेकिंग न्यूज दोपहर तक अहम खबर रहे जरूर नहीं, मगर सिर्फ हम लाए हैं सुबह से दोपहर तक बनने वाली सबसे ज्यादा अहम खबर, जिस पर होंगे सबसे अहम तजिए और तबसरे। हर शाम 4 बजे दोपहर की खबर।
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए दोपहर की खबर पीर से जुमा 4:05 से जियो न्यूज पर। वक्त बदल रहा है और खबर। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। बिलावल हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, और देखिए उन्हें कौन कौन चैलेंज करेगा। जी आप। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੌਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦੋ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਖੜਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ 250 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੁਕਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अपना खड़ा ਹੁੰਦਾ नहीं, अगले का ढा ਹੁੰਦਾ। जी साजिद भाई। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले, मौसीकार ओपी नैयर, और फिल्म का नाम है एक फूल दो माली। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਂਸੀ ਵੀ को पूछे ना किराया। फिल्म का नाम है मुसाफिर, मौसीकार है ड्राइवर, अगले स्टॉप पे मैं उतर जाना। नहीं चलो माली तो दो अगे बैठे ने, फूल केड़ा पिछला है। खुदा दा खौफ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦਾ। जी चैलेंज कीजिए। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, वे उत्ते तेरा ना कढ़िया, वे मैं बड़े आई चावां नाल, आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਾਲੀਆਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਿਰੂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚ ਕਰਵਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੁਮਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿਓ ਜੇ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਖੇਸ ਵੀ ਦਈਏ ਉੱਤੇ ਲਵੇ ਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी साजिद भाई। मलका तरन्नुम नूर जहां के गाए हुए इस खूबसूरत गाने के मौसीकार वजाहत अतरे हैं, जिनकी जिंदगी का यह सबसे पहला फिल्मी गाना है। इससे उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, और इसको खूबसूरत गीत को लिखा अहमद राही साहब ने, और इसकी फिल्म का नाम है निके होंदियां दा प्यार। जी आप। ए बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਗਾਣਾ। ਲਿੰਕਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਣ। इनको से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। ए बहार। ਐ ਬਹਾਰ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਹਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। असल च ना कान चो एक दरख्त निकल रहा बाहर। जी साजिद भाई। इस खूबसूरत दो गाने को गाया माला और अहमद रुश्दी ने। इसके शायर थे मसरूर अनवर। इसकी मौसीकी तरतीब दी थी निसार बज़मी साहब ने। फिल्म का नाम है शाका, और यह गाना मरहूम शमीम आरा और मोहम्मद अली पर पिक्चराइज किया गया था। हर गाने का पता नहीं सिनेमा च खरे समोसे बेचता सी। आयशा, इस गाने में अस्थाई और अंतरा जो है वो निसार बज़मी साहब की खसूसियत उसमें नजर आती है। हाँ, जिस तरह इन्होंने लंडे का कोट पाया सानू दूरों नजर आता है। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡੇ ਚੋਂ। उन्होंने फोन किया, बेटा उसे 8 नंबर गंढ च ही। आज जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे लिया गया है फिल्म जीवा से,
उसके लिरिसिस्ट है सैयद गिलानी, मौसीकार है एम अरशद, माजी में से गाया था अनवर रफी ने, और आज बिलावल इस खूबसूरत गाने को पेश करने जा रहे हैं हनी। चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा, पलकें तो उठा, आँखों में छुपा लो तुझे, दिल में बसा लो तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। कि मेरी तकदीर है तू, हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू, तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जवां, सांसों में रचा लो तुझे, तुझे से चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। शाहकार है, सबसे तू पाँव तक प्यार है, उसने का तू शाहकार है, जिसमें तेरा ताज महल, चेहरा है ये तेरा शायर की रंगी गजल, जिंदगी बना लो तुझे, तुझे से चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा, पलकें तो उठा, आँखों में छुपा लो तुझे, तुझे से चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पीर से जुमा 4:05 से जियो न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बिलावल हमारे साथ मौजूद है नईम सियालकोटी। आइए देखें ऑडियंस में से कौन कौन उनसे सवाल करता है। जी पूछिए। मेरा नईम सियालकोटी साहब से को ये चैलेंज है कि अगर मैं दिन में 12 दफा कहता हूँ हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, अच्छा, तो मैंने 23 साल में ये अल्फाज कितनी दफा अदा किए? एक दिन में 12 बार अगर एक बात की जाए तो 23 साल में कितनी बार की इन्होंने ये बात? इंडिया चले गए।
अल्लाह खैर लगता बार्डर ते फिर 23 साल का हिसाब करना है भाई। सवाल है कि केड़ा उम्र क्या सुनाती है। ਉਹਨਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1,740 जी कंट्रोल रूम जी 1,740 जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान से मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो ताकि रोजाना बंदा कहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं दिहाड़ी की मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद तू कहना तो इशारे से तू रुकदा नहीं। पाकिस्तान से जितनी भी मोहब्बत की जाए कम है कूड़ा तू बाहर सुटना बूहे के। पाकिस्तान से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हाँ जो तो बिल जमा कराने जाना लाइन च नहीं लगता। अच्छा बंदे नु कहेगा अब भाई बता देना मेरे तो गुर्दे दी दर्द हो रही या अपनी बेगम नु भेज देंदा। नहीं तेरे इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उसकी बात का जवाब दो। वो जवाब क्या मतलब बेले उतारन गई वो बेचारी केड़ा चरस लाइन चली गई। एक बारी मैं अपनी बीवी ने कहा मैं क्या बिल तार आ वो एडी भोली नहर च तार आई। ये भोली है। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नईम सियालकोटी साहब से ये चैलेंज है कि 6 फरवरी सन 2005 को क्या दिन था? 6 फरवरी 2005 कौन सा दिन था नईम साहब? एतवार। जी हजूर बताइए दुरुस्त है या नहीं? जी दुरुस्त है जी। अच्छा फिर बाद आप भी खुश होंगे इंजन करके क्याड़ियां इंज ही मारते जिवें पूड़ियां तलन को। इतवार का दिन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ बड़ा अहम है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? उस दिन ही ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਈ। जी फरमाइए उस दिन हुआ क्या था? उस दिन मेरी शादी हुई थी। शादी हुई सी जी। शादी हुई सी? मुबारक हो। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा तुसी मनो ना मनो नईम भाई दा चैलेंज अज जाती जिहा ही हो गया। इधर ही टिकटॉक चल रही है। भाई ने त्वार नु ते छुट्टी नहीं हुंदी। छुट्टी वाले दिन बंदा शादी नहीं कर सकता। अच्छा ब्याह दी छुट्टी नहीं हुंदी। नाले जेड़ी तारीख तुसी पूछी भाई ने ते सालगिरह वाले दिन भी बंदा भुल्लण डया हुंदा है। अच्छे कभी भी हो जाते हैं जी। हां ते टेंड बाद च होई भाई। नहीं हादसा खुशगवार सी टेंड अपनी जगह हो गई। जी सवाल कीजिए। मेरा नईम साहब से ये क्वेश्चन है कि 13 जून 1992 को क्या दिन था? 13 जून 1992 नईम साहब कौन सा दिन था? 13 जून 1992 13 जून में हफ्ता। अच्छा जी मोहतरमा हफ्ता था? जी बिल्कुल। वाह अब ये भी फरमा दीजिए उस दिन हुआ क्या था? मेरी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ है। वाह जी वाह। चलो मैं ते इन्हां दा कसमे मजा आंदा फौरी 1 मिनट जिवें इत्थे दिन हल्का जिहा स्पीड ब्रेकर लैके दिन सही दस दिन हर बंदे दा हिसाब कर रहे जो कबर च तेरा हिसाब होना की जवाब देगा। उन्होंने कौन सा किसी का कुछ बुरा चाहा है? लोग पूछते हैं वो जवाब दे देते हैं। ते एक कदा भी गलत होया ते इहदे सिर पै जाना। क्योंकि फरिश्ते ने इहनू कबर च कहना आ जरा नईम भाई आ नाल दी कबर च हिसाब करन। जी मोहतरमा क्या सवाल है आपका? मेरा नईम सियालकोटी साहब से यही क्वेश्चन है कि मैं दिन में 8 घंटे सोती हूँ तो मैं पिछले 10 साल से कितना सो रही हूँ? दिन में 8 घंटे सोती हैं ये मोहतरमा। पिछले 10 साल में कितना सो लिया इन्होंने? 29,200 घंटा। 29,200 घंटे। बाजी तुसी भंग वाले पापड़ खा गए। जी कंट्रोल रूम पहले टोटल पे करा लो। जी वो वेख तो सही सीधा इको दम 29,200 घंटे। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि नईम साहब पहले जवाब देते हैं और हमारी कैलकुलेशन जरा बाद में आती है। जी जवाब दुरुस्त है। बहुत अच्छे। वाह भैन मेरी आप तो सुती होने नसीब तेरे जागण दे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਵੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਵੇ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੈਂਦਾ। और बाकी है ना
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਪਟਾਪ। अच्छा। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ज़हन एड्डा अच्छा, तू लैपटॉप की करना। मैं यही कहने वाली थी, उनको तो जरूरत ही नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है कि वो लैपटॉप पे बैठ के उसकी कैलकुलेशंस निकाल सके, वो अपने दिमाग की मदद से ही निकाल लेंगे। वो तो मियां साहब ने कहा तू मेरी पार्टी ज्यादा नून लीग च। अच्छा। कहता मैं तहरीक इंसाफ च। वो ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? धरने च ठुमके किन्ने हो गए? 1 करोड़ ते 23 लाख ठुमका हो गया जी। जी सवाल कीजिए। मेरा नईम साहब तो ये सवाल है, मैं दिन में 15 पराठे खाता हूँ, तो 15 साल में मैंने कितने खाए होंगे? दिन में 15 पराठे खाते हैं, 15 साल में कितने पराठे खा गए ये भाई? वो तो बाद च दसणगे, पहले तानू असीं पुछांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਂਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੇਖ, ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲਵਾਈ ਏ, ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਮ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ 15 ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਪੇੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੇੜ ਹੈਗੀ ਕੀ ਉਹ ਪਰੌਠੇ। जी नईम साहब कितने पराठे खा लिए इन्होंने? 82,125 परोठे। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦੱਸਦੇ 82,125। जी कंट्रोल रूम जरा कैलकुलेट कीजिएगा, जवाब दुरुस्त है। ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣਾ, ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਦਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।